हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। वी नो दैट CSIR case 2023, they have announced the examination dates recently. They are going to conduct stage 1 examination of case 2023 from 5th of February to 20th of February। तो 5 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो इसमें से किसी भी एक दिन, only one day you will have to go and appear for both paper 1 and paper 2। तो जिसका एग्जाम स्टार्टिंग में होगा ऑब्वियसली उसको कम दिन मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। बट द पीपल हैविंग एग्जाम एट द later date or toward the end of 20th of February, they will be getting good number of days, and might be they will be aware of the kind of questions CSIR is asking in the examination. So in this video, I am going to talk about like how to go about how to approach in these remaining 20 days. As such, 20 days are not left. If we count from today, from 20th of January, only around 15-16 days are left. So how to approach these remaining days? So in this video, I am going to particularly talk about paper 1 only. In another separate video, I will be talking about paper 2. Now, if you go through paper 1 syllabus, what they have mentioned is that there will be general awareness and English language and comprehension, and this paper 1 will be of 150 marks. They have clearly told this in the notice released and the syllabus released by them. So it will be of 150 marks and time allotted will be 2 hours duration. That means in 120 minutes you have to attempt 150 questions, and out of these 150 questions, 50 questions will be purely based on English language and comprehension. So that means we are left with, or we can say there are two components in paper 1. First component talks about general awareness, in which we have these three subtopics, and then the second component talks about English language and comprehension, which is for 50 marks. So यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, इट कैरीज 50 मार्क्स, एंड वी कैनॉट ignore English subject as such. You will have to practice these six topics in remaining days if you have to score very good marks in English. Because remember, competition is very high, every mark matters here. दोनों पेपर के मिला के 350 मार्क्स है। पेपर 1 and paper 2 combined, we have weightage of 350 marks, and you have to score maximum marks possible for getting selected in final merit list. So अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, so if we talk about general awareness, we can say that there are three components. And what are those three components? We have history, and in that history, the syllabus given by them is ancient, medieval, and modern. And in modern, they have clearly talked about Indian national movement. Then we have polity and governance, apart from social justice, and then current events. So ये जो तीन part है, these three will carry 100 marks. Now we don't know the split up of marks or split up of the number of questions, how many questions they are going to ask from history, polity, and current events. Like from history, there it might be 35 questions from history and polity and 30 questions from current events, or it might be 30 questions from history, 30 from polity, and 40 questions from current events. So anything can happen, so we have to prepare equally and give due weightage to all these three subjects. And then there is English and comprehension, which I recently talked about, that it carries 50 marks. So you should be very much clear about what is going to be there in the morning session of this CSIR exam, because paper 1 is going to be conducted in morning from 10 a.m. to 12 noon. So this is what is they are talking about. So there are total 150 marks and you will be getting 120 minutes. Now, if we talk about previous question paper, so there is only one question paper available, and exam happened around 10 years back. And if you see the kind of questions they had asked that time during the examination, so you'll see that the questions were very easy in nature. Like, if you see the polity questions here, they have asked talked about union cabinet is composed of, or executive government under Constitution of India is. So Union of India has no official religion. So like this. Then Constitution of India begins with the word Indian Parliament consists of. So these questions were asked last time when exam happened, and
maybe or may not be paper will be on similar lines, because definitely they will be referring the previous question paper of theirs, like what questions we had asked, but somewhat difficulty level might increase. But as we just talked about, there will be 150 questions which we have to attempt in 120 minutes. So in my opinion, paper will be of easy to moderate level. At times we may get some difficult questions as well, but overall paper will be of moderate level, and it won't be that much difficult if you have studied well. That is what I believe. So if you talk about history, I have listed some topics here what you can prepare in these remaining 15 days. Now, talking about the syllabus in ancient, I believe these are the four important topics which you have to cover in remaining 15 days. Or if you have already covered this from any particular source, like if you have read the NCRT, or you have read the Lucent GK book, or you have read the Ghatna Chakra, any source, whatever you have followed, you have to read these topics from those sources and revise in these remaining days which are left. So ancient Harappan civilization is important, the important Harappan sites, what was found there, and how was the structure of cities, and all those things which we regularly talk about. Then we have Vedic age, what was the status of women in that Vedic age. Such kind of questions can be asked, who were the important women scholars of that age. Then Mauryan and post-Mauryan period, and Gupta and post-Gupta. Now if you see the syllabus, they have clearly mentioned that they will be asking questions from social, economical, and political life of Mauryan and Gupta period. So while reading these chapters, focus should be on these political and economical aspects, as well as social aspects during this period. So अगर पढ़ाई नहीं किया है अभी तक, तो फिर भी ये टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए इन दिस रिमेनिंग डेज एंशियंट हिस्ट्री के। देन मेडिवल हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी एक बार देख लो, what are the important events happened in the medieval India. Then दिल्ली सल्तनत, क्या क्या काम हुआ था, कौन कौन रूलर्स आए थे, उनका पीरियड क्या था, एंड व्हाट दे डिड. देन मुगल्स एंड मराठास, दे आर दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मुगल्स का आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, सबसे पहले कब शुरुआत हुई, देन व्हाट एवरीवन डिड, हाउ वाज द सोसाइटी ड्यूरिंग मुगल्स. then Marathas, you should be aware of their hierarchy, like who was there and what role did they played. देन मराठा जो साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक था, उनके इम्पोर्टेंट किंग्स कौन थे, उन्होंने क्या किया था, सोसाइटी कैसा था उस वक्त, एंड लास्ट सेंट्स ऑफ मिडिवल इंडिया. सो जो भी सेंट्स हुए थे मिडिवल इंडिया में, भक्ति सूफी मूवमेंट जो हम पढ़ते हैं, सो जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक्स इन दिस रिमेनिंग डेज. एंड एज फार एज मॉडर्न इंडिया is considered, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वी नो इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसने कहाँ कहाँ पे लीड किया था, एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस और द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ रिवॉल्ट, लाइक दिस कैन बी आस्क्ड. देन रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुए थे, सो स्पेक्ट्रम में ये काफी अच्छे से दिया हुआ है, यू कैन रेफर द स्पेक्ट्रम book for this chapter. Then economic impact of British rule, how draining was happening during British rule, who were the important critics of economic critics of British rule. So ये सब देखना होगा. Then moderates and extremists, तो 1885 से start करना है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ था, and how the early moderates were working. So extremists और moderates में क्या difference था. Then important congress sessions, who was leading the presiding the sessions. हर सेशन में कुछ तो इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन पास हुआ होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए. फिर एक्सट्रीमिस्ट जब सीन पे आए तो उनका कैसा काम रहा, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने स्टार्ट किए थे. 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था वो. फिर 1907 वो स्प्लिट अप हुआ सूरत सेशन. देन 1915 गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया, एंड उसके आगे फिर आपको वो पूरा कंप्लीट 1947 तक देखना है, लाइक द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, एंड द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तब क्या हुआ था. फिर 1940 ऑनवर्ड जब ऑगस्ट ऑफर आया, फिर आगे जितना भी है वो पूरा 1947 तक यू शुड बी अवेयर ऑफ द क्रोनोलॉजी, एंड हु वाज लीडिंग एंड व्हाट वर्क दे वर डूइंग. सो ऑल these things you have to study.
अभी ये सब पढ़ना कहाँ से है? अभी तक आपने जो भी सोर्स यूज़ किया है उसी को स्टिक करो। Whatever source you have till now, just refer that. Don't change your source. But क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं आने वाले, वन लाइनर काइंड ऑफ ही आने वाले हैं। सो अभी भी अगर जिसको पढ़ना होगा तो यू माइट रेफर घटना चक्र पीडीएफ, और लुसेंट जीके का बुक से पढ़ सकते हो, और मनोहर पांडे का बुक है। किसी का भी आप सोर्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चेंज तो होने नहीं वाला। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स एंड सिलेक्ट द गिवन करेक्ट ऑप्शन इन द एग्जामिनेशन। एज फार एज पॉलिटी इज कंसिडर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप देख लेना रिमेनिंग डेज में, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन इम्पोर्टेंट फीचर्स, शेड्यूल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अभी तक जो जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए, रिसेंट अमेंडमेंट देख लेना, 101st से लेके अभी तक जो भी है। देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बार देख लेना, क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। देन यू हैव टू स्टडी फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा फंडामेंटल राइट क्या है। देन डीपीएसपी में गांधीयन कौन से हैं, सोशलिस्ट कौन से हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है। देन यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप लोग प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर कौन कौन से स्टेट्स में विच स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो ऐसे क्वेश्चंस बार बार ऐसे काइंड ऑफ एग्जाम्स में देखे गए। सो जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक्स, एंड वट एवर सोर्स यू हैव रेफर्ड टिल नाउ फॉर कवरिंग पॉलिटी, यू हैव टू स्टिक टू दैट। देन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सैलरी टेन्योर क्या है, कैसे रिमूव किया जा सकता है, ऑल दोज थिंग। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेना, हेल्थ, एजुकेशन और पोवर्टी। मेनी कमिटीज हैव बीन फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर पोवर्टी। सो कौन कौन सी कमिटीज थे, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, व्हाट वाज द पीरियड व्हेन द कमिटी वाज फॉर्म्ड, एंड इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। तो जस्ट गो थ्रू दिस मल्टी डायमेंशनल poverty index वगैरह लाइक दिस। हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड कमिटीज, एजुकेशन रिलेटेड कमिटीज। अभी कल या परसों ही ASER एसर का सर्वे आया है। सो लाइक दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड लिंकिंग विद द करंट इवेंट्स। देन गवर्नेंस में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, वो सब आप लोग देख लेना। जो भी सोर्स यूज किया है, जस्ट स्टिक टू दैट सोर्स एंड टू कवर दिस टॉपिक्स, बिकॉज क्वेश्चन वन लाइनर आएंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। देन करंट इवेंट्स इन रिमेनिंग डेज, रिवाइज दिस टॉपिक्स। अब कितने टाइम का पढ़ना है करंट इवेंट, एटलीस्ट पिछले 8-9 महीने का देख लो। उससे आगे का पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट कवर लास्ट 8 to 9 मंथ्स करंट इवेंट्स। उसमें भी अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाया था, तो इसमें भी करंट इवेंट्स के क्वेश्चन पूछे, आप यहाँ नीचे जाके देख सकते हो। सो क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल, बस यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, मेमोराइज करना है आपको। जैसे एट दैट टाइम इरोम शर्मिला वाज द एक्टिविस्ट हु वाज फास्टिंग अगेंस्ट दिस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। सो शी वाज इन न्यूज, सो पर्सन इन न्यूज हमें देखना है। फिर इंडियन प्रीमियर लीग का 5th एडिशन कौन सी टीम ने जीता था, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर। फिर ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज हेल्ड बाय, कौन था उस वक्त मेन हमारे सीईसी। सो ऐसे आपको देखना होगा। अवार्ड्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2011 में किसने जीता था, फिर लंदन ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते थे। तो लाइक दिस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। देन स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। So again, questions are not difficult. You have to just remember and memorize the things. So sports देख लो इम्पोर्टेंट, जैसे ICC वर्ल्ड कप हुआ था, IPL हुआ था, जितने भी टेनिस रिलेटेड कुछ होगा, फुटबॉल रिलेटेड कुछ होगा इंडिया में। अभी जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में सुमित नागल ने किसी प्लेयर को हराया। सो सुमित नागल हो सकता है कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, सो टेनिस इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन अवार्ड्स में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखो, जैसे अभी रिसेंटली अर्जुना अवार्ड्स दिए गए स्पोर्ट्स पर्सन्स को। तो किस किस को मिला, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। सो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गए, ऑस्कर्स हो गया, या कुछ और भी होगा। सो अवार्ड्स देख लो। इंपॉर्टेंट कमिटीज, कमीशन, जो भी गवर्नमेंट ने अभी कंस्टिट्यूट किया होगा, जैसे अभी फाइनेंस कमीशन आया है। सो हु इज हेडिंग दैट फाइनेंस कमीशन,
इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स अगर कुछ आए होंगे न्यूज़ में तो रिपोर्ट्स किसने रिलीज़ किया, क्या फाइंडिंग्स थी। सोशल स्कीम्स देख लो, गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स लेके आती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटीज़। देन फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में पहली बार किसने क्या किया, एनवायरनमेंट रिलेटेड। लाइक जैसे अभी कॉप 28 हुआ दुबई में, यूएई में। तो कॉप 28 में इंडिया का रोल क्या था, क्या क्या साइन हुआ, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से यूज हुए थे। तो हो सकता है कि उसमें से रिलेटेड कुछ पूछ ले आपको। फिर साइंस एंड टेक इज मोर इम्पोर्टेंट, सो साइंस एंड टेक रिलेटेड जैसे आदित्य L1 हो गया अभी न्यूज में, चंद्रयान 3 हो गया। फिर अभी वर्ल्ड के न्यू ईयर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने सैटेलाइट ये लॉन्च किया था। सो वॉट एवर इज देयर इन न्यूज, इम्पोर्टेंट मिसाइल्स हो गया या वॉरशिप होगा, कुछ भी होगा रिलेटेड टू साइंस, दैट यू हैव टू कवर। अब कहाँ से करंट इवेंट्स कवर करना है, एनी सोर्स यू कैन रेफर, अभी तक जो भी रेफर किया है। जैसे जीके टुडे हो गया, फिर करंट अफेयर्स क्लाउड हो गया, अड्डा 247 का एक आता है। तो कुछ भी सोर्स आप यूज कर सकते हो जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, बस इम्पोर्टेंट ये है कि जस्ट कवर दिस टॉपिक्स। और इंग्लिश का बताने का ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू अबाउट इंग्लिश बिकॉज़ क्लियरली इट इज़ कैरिंग 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स बहुत होता है बिकॉज़ आउट ऑफ 350 आप इमेजिन करो 50 मार्क्स रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम प्योरली इंग्लिश। इसमें कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, देन एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा आपका, सिनोनिम एंटोनिम्स आएगा। तो रोज एटलीस्ट 40 या 50 सिनोनिम एंटोनिम्स कवर करो, तब तक आपके में भी एक अच्छा खासा डेटा बैंक आपका तैयार हो जाएगा। देन कॉमन एरर फाइंड करने के लिए आएगा, ईडियम्स फ्रेजेस पूछेंगे। सो इंग्लिश देखो बहुत स्कोरिंग है आजकल, हर किसी एग्जाम में इंग्लिश पूछते हैं, जैसे बैंकिंग एग्जाम हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया। सो स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक्स, सो यू जस्ट सिंपली कैनॉट इग्नोर इंग्लिश। एंड रिमेंबर हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आज हर एग्जाम में पूछते हैं। So everyone is preparing history and polity for some time, except the fresher who is just started preparing. Otherwise, everyone is preparing. So just you cannot ignore the topics which are given here. और टारगेट ये रहना चाहिए कि मैक्सिमम आप लोग को स्कोर करना है। अब रिमेनिंग डेज में आप कैसा कर सकते हो, तो जस्ट मुझे लगता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, हिस्ट्री 7 डेज के लिए पढ़ लो, पॉलिटी 7 डेज के लिए पढ़ लो। और वॉट एवर इज योर स्ट्रेंथ, जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है उसके लिए आप कम टाइम दे सकते हो, एंड द अदर सब्जेक्ट्स यू कैन गिव मोर टाइम। सो हिस्ट्री यू कैन गो इट फॉर 7 डेज, पॉलिटी फॉर 7 डेज, और लास्ट 2 दिन जो है वो रिवीजन के लिए रख सकते हो। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका एग्जाम में भी 5 फरवरी को आएगा, 5 या 6 फरवरी को। जिसका एग्जाम 10th या 12 14 फेब के बाद आने वाला है उसको तो टाइम ही टाइम मिलने वाला है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड द नंबर ऑफ डेज। एज फार एज इंग्लिश एंड करंट इवेंट्स आर कंसिडर्ड, दे डिमांड डेली स्टडी, हर दिन पढ़ना होगा। तो डेली 1 से 1.5 घंटा आप हर सब्जेक्ट को दे सकते हो। करंट इवेंट्स 1 घंटा पढ़ लिया या शॉर्ट नोट्स बना लिए। इंग्लिश का वो जो 6 टॉपिक्स है वो 6 टॉपिक्स कवर करो आप। तो डेली 1.5 घंटा आप इंग्लिश को डिवोट करोगे तो दैट विल ऑल्सो डू। सो डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ कितना है वो सब्जेक्ट। अगर आप पहले से अच्छे हो तो नो नीड टू डिवोट टाइम, जस्ट फॉलो द सिंपल स्टेप्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट पेपर 1। पेपर 2 का भी एक वीडियो आएगा ऐसे ही। सो पेपर 2 में क्या करना है देखो, उसमें 8 कंपोनेंट्स दिए हैं एंड 25 क्वेश्चंस ईच विल बी कमिंग। सो वहाँ पे 2.5 आवर्स टाइम है, तो 150 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड वहाँ पे कैसे आप कुछ इग्नोर नहीं कर सकते हो, वहाँ पे हर सब्जेक्ट का वेटेज फिक्स है कि 25 क्वेश्चन आने वाले, देयर विल बी 25 क्वेश्चन। सो लेट्स सी, विल डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो। बट अभी के लिए पेपर 1 आई हैव टोल्ड यू व्हाट टू डू इन दिस रिमेनिंग डेज। जस्ट ट्राई टू कंप्लीट द टारगेट। और देखो काफ़ी बच्चों का ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने एग्जाम डेट रिलीज किया तो एवरीवन वाज लाइक दैट कि अरे बहुत कम टाइम मिल रहा है। देखो सिलेक्ट तो होने ही वाले हैं लोग, पूरे इंडिया में से कोई ना कोई तो सिलेक्ट होने ही वाला है एग्जाम के लिए। वो ये नहीं सोचते बैठेंगे कि अरे टाइम बहुत कम मिला है और अब कैसे होगा क्या होगा करके। दे आर सिंपली गोइंग, मतलब वो पूरा अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो पढ़ाई में लगे हुए हैं, वो ये नहीं सोच रहे कितना टाइम है क्या करना है करके। दे आर डिवोटेड टू देयर स्टडी। सो आप लोग भी ज़्यादा मत सोचो, जो भी टाइम बचा है उस टाइम में आप आपका 100% दो। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। अगर आप आपका 100% नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, आप पहले से ही फिर गिव अप करो ऐसा हो रहा है। सो जस्ट डोंट गिव अप द थिंग्स सो इजीली। अभी भी काफ़ी टाइम है, और
पेपर सिविल सर्विसेज के लेवल का नहीं आने वाला है, पेपर बैंकिंग एसएससी लेवल का आने वाला है। तो आप लोग को ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो बस रिवाइज़ करो और वो 4 ऑप्शन देख के आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानने आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम ऑल अबाउट एंड यू हैव टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन द गिवन टाइम ड्यूरेशन. So all the best for your preparation. I will come up with paper 2 shortly. Thank you for watching the video.